Hello students, I am Dr. Abis and today we are going to have discussion about another important topic of extension education, that is concept of education. Okay, so as you all know, it is one of the very important topic, usually it comes in your exams. So I try to make it simple for you so that you can have a basic understanding what is education, what are various types of education, and what are the various definition which is given by various authors. And then of course we will talk about the difference between various types of education. Okay, so before I start, let us ask from you, what does comes in your mind when you heard the word एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप शब्द एजुकेशन से सुनते हैं? तो आई होप you have different, all of you have different idea about education. Okay, so let us discuss in its very in simple way what is education. Okay, so if we can say education is a process. Okay, essentially it's a process of bringing desirable change in human behavior, right? शिक्षा एक प्रक्रिया है मानव व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की। ये डिफिनीशन जो है एक्सटेंशन की, मतलब एजुकेशन की कह लीजिए, दिस डिफिनीशन वाज गिवन बाय थॉमसन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ education, right? Okay, beside Thomson, various people have given various definition of education, and we will discuss, but let us first focus on this aspect, this definition of education. So Thomson says education is a process of bringing desirable change in human behavior, right? So now question comes, what is behavior? So behavior is consist of three things at least: knowledge, attitude, skills, and other attributes. Okay, so when people say education is a process of bringing desirable change in human behavior, essentially they are trying to say it is change in the people's knowledge, it is change in the people's attitude, and it is change in the people's skills. When change happen in the knowledge of the people, when change happen in the way they thought about something, their attitudes and their skills, of course reflection will comes in their behavior, right? Okay, so this was the basic definition given by Thomson. And if we talk about the various Indian scholars who has given the different definition of education, so the prominent name that comes, it is R.N. Tagore, definition given by R.N. Tagore. So what he says, what is education? So R.N. Tagore says education is nothing but it is a satisfaction of soul. शिक्षा कुछ नहीं बल्कि आत्मा की एक संतुष्टि है। जब वो ये कह रहे होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? मीन्स वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली एजुकेशन इज इसेंशियली striving for satisfaction of the curiosity that's arise in an individual, right? Okay, and one of the most prominent definition which is very famous, again it is given by Indian philosopher and spiritual leader, that is Dr. Vivekananda. So Vivekananda defined education is the manifestation of divine attributes or qualities which is already within a man. Okay, विवेकानंद के द्वारा ये डिफिनेशन जो दी गई शिक्षा की, उन्होंने कहा कि शिक्षा यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में मौजूद दैवीय गुणों को एक प्रकटीकरण करने की एक प्रक्रिया है। ओके, और जो और जब मॉडर्न एजुकेशन की बात आती है तो इसमें हम गांधीयन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को नहीं भूल सकते। और गांधी के जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन वो कहते हैं कि एजुकेशन डज नॉट मीन बीइंग लिटरेट, शिक्षा साक्षरता नहीं है। He had a broad understanding, a broad definition of education. So he says by education I mean overall development of mind, spirit and body of an individual. उनका जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो एक ऐसी शिक्षा की बात करते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो दीज वर द डिफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय वेरियस ऑफ कोर्स इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर। एंड देन ऑफ कोर्स यू ऑल हैव यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ
लाइक डेवलपिंग ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, है ना। शिक्षा एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास किया जाता है, राइट, है ना। तो हम कह सकते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति में सोचने की क्षमता डेवलप होती है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कि व्हाट इज़ दैट इज़ द मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसको हम चरित्र निर्माण कहते हैं, और जिस पर विवेकानंद हो व गांधी हो या जो भी इंडियन फिलोसफर या थिंकर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जब बात की जाती है तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ओके, जब हमने इसके बारे में बात कर लिया कि शिक्षा क्या है और शिक्षा की जो अलग अलग डिफिनीशन अलग अलग ऑथर्स या फिलोसफर या थिंकर द्वारा दी गई है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ओके, सो यू विल फाइंड इन डिफरेंट रूट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन हैज बीन लाइक essentially given, but I will focus on the 3 types of education only, that is formal education, informal education and non-formal education. Okay, so let us discuss what is formal education. See, if you go by the definition of the books, formal education essentially it is a highly institutionalized, chronologically graded and hierarchically structured education system in which selected type of education is being provided to the students. Okay, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, जो फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, वो मुख्य तौर पर एक ऐसी शिक्षा है जो कि स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में दी जाती है, राइट। ओके, उसके अलावा एक दूसरा जो हमारा एजुकेशन का टाइप है वो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, ओके, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास अपने अनुभव से बहुत सारे लाइक ज्ञान, स्किल्स, एटीट्यूड वो सीखता है, राइट। ओके, सो अगर हम डिफिनीशन वाइज जाएं तो इनफॉर्मल एजुकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड from your surrounding environment, while playing at home, etc. Okay, so now let us come and discuss about the concept of non-formal education, right? Okay, so non-formal education ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन से। और जब नॉन फॉर्मल एजुकेशन की डिफिनेशन की बात की जाती है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड educational activity in which selected type of education is provided beyond the like framework of formal education setup to the selected people. Okay, so अगर ये बात आपको थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक तरीके से एक सुव्यवस्थित शिक्षा पद्धति है या शिक्षा की एक प्रक्रिया है जिसमें एक सिलेक्टेड ग्रुप्स को, चाहे वो उसमें यूथ हो सकते हैं, यंगस्टर्स हो सकते हैं, एडल्ट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, वुमेन्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, जिनको उनकी नीड बेस्ड और उनकी समस्या आधारित जो है समस्याओं पर आधारित जो है शिक्षा उसमें दी जाती है। और इसेंशली वो जो शिक्षा होती है वो उनके खेतों में, उनके घरों पर, उनके गाँव में दी जाती है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो कि एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं, जो कि स्कूल्स के बाहर लोगों को उनके गाँव में, उनके घरों में ये शिक्षा दी जाती है, उनके खेतों पर दी जाती है, राइट, है ना मैसेज। सो वी हैड टॉक्ड अबाउट द definition of like education, concept of education, and we had covered about the types of education. So now let us focus like on this lecture only we will try to cover what is difference between formal and non-formal education, because it is very much important from your examination point of view also, and lot of question comes while you people are preparing for ICAR, JRF, ICAR, SRF, these things also. So question come from this like topic which I am going to discuss. So formal education and non-formal education. Okay, so फॉर्मल एजुकेशन को मुख्य तौर पर हम जैसा कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम अनौपचारिक शिक्षा भी एक तरीके से कह सकते हैं, राइट। सो वैसे तो लाइक बुक्स में आप देखेंगे अलग अलग आपको बहुत सारी लाइक अंतर आपको मिल जाएंगे, बट आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ एंड डिस्कस ओनली दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हिच clearly
डिस्टिंग बिटवीन व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन में पहले पॉइंट पर हम कवर करेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन नाम से ही क्लियर है, औपचारिक शिक्षा। तो एजुकेशन व्हिच इज मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड विद इन द फोर वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्था एक के चार दीवारी के भीतर जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उसको हम एक तरीके से औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं, राइट, है ना। जबकि अनौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज एजुकेशन व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बियॉन्ड द फॉर्मल सेटअप ऑफ लाइक एजुकेशन। सो ये है एक ऐसी शिक्षा है जो आपको आपके गाँव में, आपके खेतों में, आपके घरों पर लाइक दी जाती है और बिल्कुल इनफॉर्मल सेटिंग में आपको ये शिक्षा दी जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लाइक डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या दूसरे कोई भी कोर्स करें, तो आप देखेंगे इसका एक जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, देयर इज अ वेरी फिक्स्ड सिलेबस। ओके, इफ यू वांट टू गेट डिग्री यू नीड टू cover it, you need to pass it, and then only you will get degree, right? So there is fixed syllabus and curriculum in case of formal education, and in case of non formal education ऐसा कोई फिक्स सिलेबस आपका नहीं होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो नीड बेस्ड होती है, प्रॉब्लम बेस्ड होती है और आपकी आवश्यकता आधारित जो है शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस एंड करिकुलम नहीं होता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कह लीजिए कि अंतर है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इज क्वाइट कंपल्सरी, राइट। आई मीन लर्नर हैज़ नो चॉइस बट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। आपको अगर डिग्री लेना है तो आपको कोर्स पास करना ही पड़ेगा, राइट, है ना, मतलब ऐसे। तो पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी इन केस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, व्हाइल वॉलंटरिज्म, स्वतंत्रता जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, राइट। सो देर इज नो फिक्स्ड या फोर्स पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इफ यू हैव नीड फॉर लर्निंग देन यू कैन come and join. If you have like interest in the learning then you can come and join, but there is no element of force in case of non-formal education, right? Okay, and of course then like हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन में एक डिफरेंस है। फॉर्मल एजुकेशन केस में आप देखेंगे, अगर देखेंगे तो जो हमारा लर्नर होता है वो होमोजेनस इन नेचर होता है। जब मैं कहता हूँ होमोजेनस, इसका मतलब क्या हुआ? होमोजेनस का मतलब होता है कि जो हमारे लर्नर होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर in various attributes, like in terms of their age, in terms of their interest, intelligence, like their values, belief, attitudes. So there are some element of like similarity will be found among the learner, right? But in case of non formal education heterogeneity is the essential element. आप देखेंगे कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें लर्नर होते हैं, उनका एज में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा आपका, उनके सोशल स्टेटस में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा आपका, उनके एजुकेशनल स्टेटस में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, उनकी नीड्स अलग अलग होंगी। आई मीन इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्मर्स, सो देयर विल फार्मर्स who will be interested in growing cereal crops, there are farmers who will be interested in growing horticulture crops. So of course there will be difference in their need of information, and of course their problem will be different. So heterogeneity is the important element of non formal education, right? Okay, and then like we can also say कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उसको हम वर्टिकल प्रोसेस कह सकते हैं। वर्टिकल प्रोसेस से क्या मतलब है मेरा कि वर्टिकल प्रोसेस मतलब जो फ्लो ऑफ नॉलेज होगा वो टीचर से लर्नर की तरफ होता है, वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज होता है ज़्यादातर आप केस में देखेंगे इन फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में। जबकि इन फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आप देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड इज टू वे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट, जहाँ पर टीचर्स या फैसिलिटेटर या ट्रेनर द्वारा कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम लर्नर ऑल्सो, राइट, है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन टू people. So it's a kind of vertical, it's a kind of horizontal process, या इसको टू वे प्रोसेस भी कहते हैं जहाँ पर ज्ञान एवं शिक्षा का आदान प्रदान होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हमारा है वो हॉरिजॉन्टल मीन्स वर्टिकल प्रोसेस में आता है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है हमारा वो एक तरीके से आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में आता है, ठीक है। ओके,
अच्छा, आप देखेंगे कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका जो एप्लीकेशन है वो आई मीन फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड होता है ना, इसका इमीडिएट एप्लीकेशन ऐसा सच नहीं होता, राइट, है ना। जबकि इन केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड, इट इज़ नीड बेस्ड, तो इसका एप्लीकेशन इट इज़ क्वाइट इमीडिएट, राइट, है ना। तो आप ये भी देखेंगे, अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो जो फॉर्मल एजुकेशन है इट इज़ फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन, जबकि जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, राइट, ओके। एंड देन अगर अथॉरिटी की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन में टीचर विल हैव मोर अथॉरिटी एज कम्पेयर टू लर्नर। इन केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे मैंने कहा कि लर्नर विल हैव मोर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट, है ना। सो आई मीन्स अथॉरिटी विल लाइज विद द लर्नर, ओके। उसके अलावा ऑफ कोर्स आई मीन देयर आर अदर डिफरेंसेज ऑल्सो, बट आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। और इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इतना आपके लिए शायद एनफ होगा। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू आई मीन enjoy this part of session, and if you like this video, please try to share among your friends, and do let me know what is your feedback so I can improve on in future. Okay, thank you and all, right.